Hello everyone, welcome to the next lecture on the CSR Net Mathematics 2025. Today I will explain you how you can solve the integral equations part C questions. Definitely I will explain you all with the help of the shortcuts. Myself Dr. Harishkar. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the CSR Net. In this playlist you can see I had uploaded the complete solutions of the part B, either from the complex analysis, real algebra, Markov chain, and many more available in this playlist. Also, you can see the GATE 2025 complete solution is available, and you must follow and subscribe my YouTube channel so that whenever you watch my 313 videos, you will be qualify the NET examination very easily. बच्चों एक बात याद रखो, मैं जो भी सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं अभी भी और जो मैंने अपलोड कर चुका हूं वो सेम उसी अप्रोच से अपलोड कर रहा हूं जिससे मैंने आपको टीच करा था, और ये सब लेक्चर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है. देयर इज नो नीड टू पे एनी सिंगल रुपीज टू एनीवन. चलिए, इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वन इज रिलेटेड टू दी वोल्ट्रा इक्वेशन एंड सेकंड इज दी फ्रेड-मोल इक्वेशंस, एंड यू कैन इजीली गेट दी 4.75 मार्क्स प्लस 4.75 मार्क्स इजीली. चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन. सबसे पहले इस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में लिख लेता हूं. आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आपके पास तो दिमाग में ही होगा सारा कुछ. ओके, देन ये इक्वेशन आपके पास है. जब भी आपको वोल्ट्रा इक्वेशन दिखाई दे, सबसे पहला काम आपका रिजोल्वेंट कर्नल है. फाइन, दिस इज माय कर्नल k of xt, दिस इज माय fx and the value of the lambda is my 1. सबसे पहले चेक करिए whether this kernel will satisfy this property or not. K of x comma x is 1 or not? Yes, because 3 plus sin x cancel out. Second property, kernel of x comma t multiply kernel of t comma x, whether this is a 1 or not. Again you can see this is satisfied. Once both the properties satisfied, then your solution will be u is equal to fx plus lambda times 0 to x resolvent kernel into f of t. Fine, but question arises is how you can find the resolvent kernel. So whenever the any of the kernels satisfy these properties, your resolvent kernel will be lambda minus t into kernel. What is the lambda? Lambda is my 1, so I can substitute the value. Kernel is my 3 plus sin x divided by 3 plus sin t. Now the solution will be, you can substitute here, so u will be 3 plus sin x plus lambda is my 1 resolvent kernel into f of t. अगर आप f t करोगे 3 plus sin t will be cancel out here. Fine, क्या अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टी करना है आपको इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, कुछ कॉमन आ जाएगा बाहर, 3 प्लस साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स कॉमन 3 प्लस साइन एक्स. फाइन, इंटीग्रेशन बाकी क्या रह जाएगा पीछे, ई रेस्ट पावर माइनस ऑफ टी, और ई रेस्ट पावर माइनस टी की इंटीग्रेशन दिस नंबर. फाइन, so you can see 3 plus sin x I can take an again common from the complete series, so it is 1 plus e raised to power x, it is 1 minus e raised to power minus x. तो कितना बन गया ये, 3 plus sin x into e raised to power x. फाइन, अब आप अपने आंसर दे लीजिए, दैट्स ओवर. सो योर u of pi by 2, जैसे pi by 2 फिल करोगे 3 plus 1 4 e raised to power pi by 2 satisfied. Second option, pi, sine of pi is 0, 3 e raised to power pi satisfied. Third option, minus of pi, sine minus pi is 0, 3 e raised to power minus pi cancel. Sine of minus pi by 2 is a minus 1, 2 e raised to power minus pi over 2, that option is also cancelled. A and B are the right answer of this problem. अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो और अगर आपने पहले से ये लेक्चर देखा होगा, यू कैन सी द लेक्चर विच इज रिलेटेड टू द वोल्ट्रा इक्वेशन. अगर आपने ये लेक्चर देखा है मेरा, दैट इज अ रिजोल्वेंट कर्नल ऑफ द वोल्ट्रा इक्वेशन, सेम, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द 15 और 20 सेकंड्स. बच्चों एक बात हमेशा आपने नोट भी करी होगी, जिस तरह से मैंने आपको ये लेक्चर अपलोड करे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस अप्रोच से मैंने हर क्वेश्चन को सॉल्व कराया, चाहे वो 2011 का था,
चाहे वो क्वेश्चन 2025 का है। सेम अप्रोच से मैं इस बार का सोल्यूशन भी अपलोड कर रहा हूं, मैं कोई नई अप्रोच नहीं लगा रहा आपके लिए। फाइन, तो ये चीज आप भी सीखिए, चाहे वो क्वेश्चन 2011 का था, चाहे वो 2025 का है, मैं सेम अप्रोच से ही आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। तो ये आप भी तो कर सकते हो ना एग्जामिनेशन में। फाइन, तो अगर आप ये सारी प्लेलिस्ट को अच्छे से देखते हो और उसी तरह से प्रैक्टिस भी करते हो, देखना ही बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करना भी बड़ी बात है। आपके प्रैक्टिस करिए हर क्वेश्चन को। आप क्या करते हो, आप वीडियो को देखते हो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते। आप प्रैक्टिस आप किसी और की अप्रोच लगाते हो और एग्जामिनेशन में आप जाके कंफ्यूज हो जाते हो। ऐसा नहीं करना। जिस अप्रोच से आप करते हो, जिसको आप देख रहे हो, जिसको फॉलो कर रहे हो, उसी से ही आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी वीडियोस को जरूर ही देखिए, चॉइस आपकी है, देखना नहीं देखना है चॉइस ऑन यू। लेकिन अगर आप वीडियोस को देख रहे हो तो फिर प्रैक्टिस भी उसी अप्रोच से ही करिए। आप प्रैक्टिस किसी और मेथड से करते हो, वीडियो कुछ और देख रहे हो, तो एग्जामिनेशन में आप इसलिए कंफ्यूज हो जाते हो। आपके सामने मैंने जो भी जितने भी सॉल्यूशन अपलोड करे हैं यहाँ पे, और आपने ये पार्ट बी के सॉल्यूशंस देखे हैं, कोई भी अप्रोच मैंने ऐसी नहीं लगाई सॉल्यूशन बता अपलोड करते वक्त जो मैंने वीडियोस में अपलोड नहीं करी हो। सेम अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ, सब कुछ सेम ही कर रहा हूँ मैं आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करेंगे आप। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। जब भी यूनिक सॉल्यूशन की बात हो, इनफाइनाइट की बात हो, नो सॉल्यूशन की बात हो, आपका टारगेट क्या है, इसको किस फॉर्म में लिखना, सिस्टम की फॉर्म में लिखना, ax इज इक्वल टू बी। फाइन, और सबसे पहले कर्नल देख लेते हैं, क्या है आपका कर्नल। कर्नल इज माई साइन ऑफ x माइनस टी। इसको मैं ओपन कर देता हूं, इसे साइन x साइन a माइनस बी, साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। फाइन, तो फर्स्ट फंक्शन x का है तो इसको f1 ले लेता हूं, दिस इज माई g1, this is my f2 is my minus of cos x and this function is my g2। तो आपका a की वैल्यू क्या होगी, इस दो है आपके पास सेपरेबल वेरिएबल, तो आई कैन से अल्फा 11 अल्फा 12 अल्फा 21 अल्फा 22 वेयर अल्फा ij is integration from 0 to pi। फाइन, g of I function of the x, f of j function of the x। चलिए बस अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 10 सेकंड के अंदर आपकी सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। 1 g1 f1, इन दोनों को आप अगर मल्टीप्लाई करोगे फ्रॉम इट्स विद रिस्पेक्ट टू x sin x into cos x, तो ये क्या आएगा, बाय यूजिंग द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी दिस इज माई 0। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का यूज करिए। सेकंड इज अल्फा 1 1 2 that is a g1 f2 is my minus cos x, so that will be my minus cos square x from 0 to pi। तो ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से ये कितना आंसर आएगा, माइनस पाई ओवर। फाइन, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस कोस 2x ओवर 2, इंटीग्रेट करोगे ये साइन हो जाएगा, साइन की वैल्यू पाई पे 0, 0 पे 0, इससे पाई बाई 2। 2 1 पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर पाई ओवर 2, और ये वैल्यू आपकी साइन इंटू कोस विल बी 0। फाइन, अब ये यूनिक सोल्यूशन कब देगा, ax इक्वल बी यूनिक सोल्यूशन तभी देगा जब आइगन वैल्यूज ऑफ द a, जो भी इसकी आइगन वैल्यू है, दे आर नॉट इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। व्हाट इज द लैम्डा, यू कैन कंपेयर द सिस्टम विच इज f प्लस लैम्डा, जो भी आपकी डोमेन है, कर्नल into ut। so what is the f, what is the lambda, lambda is my 2 over pi। तो इसका मतलब अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि इसकी आइगन वैल्यू पाई ओवर 2 के इक्वल नहीं आ रही, देन इट्स फाइन। सो कैन यू फाइंड द आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू ऑफ द a is अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, so that will be प्लस माइनस पाई ओवर 2 आयोटा। और देखिए कोई भी आइगन वैल्यू आपकी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं आ रही, इसका मतलब क्या होगा, ये जो सिस्टम है हमेशा ही यूनिक सॉल्यूशन देगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ द x, हमेशा ही देगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ द fx। तो जब कोई भी वैल्यू ऑफ fx के लिए यूनिक दे रहा है तो सारे आंसर ही आपके करेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द fx। रिमेंबर दिस इज द सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स, और यही शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने आपको, आप दोबारा से इस आइगन वैल्यूज वाले लेक्चर पे जाओगे अगर, दिस वन जस्ट वेट, ये वाला लेक्चर अगर आप सुनोगे, आइगन्स वैल्यूज ऑफ द दिस वन,
आइगन्स वैल्यू ऑफ द फ्रेडमोल इक्वेशंस, और इसी पे ही मैंने आपको बताया है ax = b से कैसे आप सिस्टम को सॉल्व करोगे। तो आप देखिए सिंपल है आपके पास, सिंपल आपको आइगन वैल्यूज ऑफ a निकालनी है। अगर वो लैम्डा नहीं आई तो इट इज यूनिक फॉर ऑल दी वैल्यूज ऑफ दी fx। कुछ भी ले लेते हैं आप fx अगर आप 1 ले लो तब भी आएगा, fx अगर आपने 1 + x ले लिया तब भी आंसर करेक्ट है। फाइन। तो देखिए कितने सेकंड लगेंगे आपको इस सिस्टम को मैट्रिक्स को बनाने के लिए। मैंने एक्सप्लेन करा इसलिए समय लगा है, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन में हो आपको एक्सप्लेन नहीं करना, आपको तो कैलकुलेट क्विकली करना है। और मैं फिर कह रहा हूं यही अप्रोच मैंने आपको इस लेक्चर में एक्सप्लेन करी है आइगन वैल्यूज में। फाइन। तो हर क्वेश्चन को मैं सेम मेथड से अप्रोच कर रहा हूं। मैं बच्चों फिर कह रहा हूं आपको, आप वीडियो को देखिए और वीडियो में जो अप्रोच बताई है उसी अप्रोच से बाकी क्वेश्चन जो आपके पास किसी बुक में है, किसी अदर क्वेश्चन पेपर में है, किसी में भी है, उसको सॉल्व करिए। ऐसा मत करिए कि आपने अप्रोच मेरी लर्न कर ली लेकिन प्रैक्टिस करते वक्त आप किसी और की अप्रोच यूज कर रहे हो, फिर तो आप लर्न नहीं ना कर पाए, आप कंफ्यूज हो जाओगे उस वक्त हर पॉइंट पे भी। एक ही को फॉलो करिए, चाहे किसी को भी करिए आप, ऑल आर गुड, ऑल आर इक्वलेंट। फाइन। लेकिन मेथड एक रखिए जिससे आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर पाए। उम्मीद करता हूं आपको दोनों सॉल्यूशन काफी अच्छे लगे होंगे और आप वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करेंगे, जिससे मेरे को भी सपोर्ट मिलता है कि आप वीडियोस को देखते हो, पसंद करते हो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूं। We will see the next lecture on the other solution of the part C, such as differential, partial, linear, and so on. Till then, you can share this video with your friends, like and comment on this. Happy learning always, and please don't forget to subscribe my YouTube channel. Best of luck, students. Thanks for the watching.